Hi students, I hope you all are doing well. So once again, welcome in CPJ Academy. In today's lecture, you will gonna learn about this animal kingdom. So let's start this chapter. See, as we are talking about the animal kingdom, so first thing that you must know is that animal kingdom, it is one of the largest kingdom. Okay, so it is one of the largest kingdom, and the another name for this animal kingdom, let me write here. कि एनिमल किंगडम के लिए अगर आप दूसरा नाम बोलना चाहें, just a second, it is also known as metazoans. Okay, now the question is why they are known like that. It's because if you saw this, so they are eukaryotic, or let me write this kind of, they are eukaryotic multicellular organisms. Okay, this multicellular as the name suggests, that means जो animal kingdom है, आपके जो animals है, basically they consist of many cells. Okay, so multicellular means many cells. So अगर आप देखते हैं एनिमल किंगडम पे, जो जो मेजरली जो एनिमल्स हैं वो आपके सी में रहते हैं. Okay, then if you saw that on fresh water, okay, fresh water, and after that on land. ओके, सो आप क्राइटेरिया अगर देखो तो पहले सी पे रहते हैं, देन फ्रेश वाटर एंड देन लैंड. So yes, we know that there are millions of species of animals have been described, and it becomes more necessary to classify them to assign a systematic position. That's why यहाँ पर classification criteria आता है. That how will you gonna classify? I will tell you that in the upcoming slide. So in your question paper, for 1 marks you may get that question, that how many phyla exist in animal kingdom. So we have almost 35 phyla. Okay, so most of them which are found in sea. So mostly आपके sea में है, few in fresh water के, और बहुत कम जो है वो आपके land पे रहते हैं. When you have an abundance of animals, so you must know that how will you gonna classify those organisms. So you can classify those on the basis of the arrangement of cells. If I am talking about the arrangement of cell, आपको पता है, like on the cellular basis, okay, on the tissue level, on the organ system level, on the organ level. So there are so many levels, I will tell you. Then second टर्म जिसके बेसिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हो ऑर्गेनिज्म को, दैट इज बॉडी सिमेट्री. ठीक है, कि वो रेडियल है या बायलेटरल है. नेचर ऑफ सिलोम, if you see the coelom, so it's something you can say it's a body cavity. तो किस एनिमल में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर है तो सही बट स्कैटर्ड फॉर्म में है, दैट इज स्यूडो सिलोम काइंड ऑफ. सो ऑन दैट बेसिस यू गोना क्लासीफाई, ठीक है, कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा. देन ऑन द बेसिस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, एंड ऑल्सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, इसके बेसिस पे आप क्लासीफाई करते हैं. So just let's start with the very first, that is the level of organization. If you see levels, okay, so एक level होता है इसमें, that is that is a cellular level. Okay, a cellular level. See, a cellular मतलब cells है ही नहीं, you can say, है ना, but ऐसा होता है. See, जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, या मास ऑफ, जस्ट ओके, सो आपका सेल्यूलर में ये जो इनकी बॉडी होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ,
Okay, so protozoa is an example for the cellular level of the organization. So just let's have a look of the levels of the organization. First level, aside, beside of that cellular level of organization, we are having cellular level of the organization. For example, you can take this sponges for that. Then there's another level of the tissue level of the organization. For that, we are having the example cnidarians. Third one is organ level of organization. So for that is platyhelminths. Then there is organ system level of organization. The example that we are having is arthropod. I will tell you like what is cellular level. See, cell, it's a very basic thing. ठीक है ना, cell you can say it's a building block. अगर एक बहुत ही common language में बोला जाए, so cell is basically it's a building block of your life. Okay, it's like a brick. Like you need a brick to build a house. In the same way, if you want to build some organisms, if you want to build organism, then cell is the very smallest unit for that. Okay, if there is no cell, then there is no human being, then there is nobody. Okay, so yes, for cell, if you are gonna say, so it's a basic unit of structure and function in living beings. Okay, a question that may come in your mind, like what is structure? Structure is that, as you know, it's a building block. That means, everyone is made up of cell. Okay, every person or everyone, everyone is made up of cell. Okay, then about function that जो भी आपकी सेल है उसी के अंदर सब फंक्शन भी हो रहे हैं. दैट मीन्स यू आर मेड अप ऑफ सेल एंड ऑल्सो ईच एंड एवरी फंक्शन इज गोइंग इनसाइड the cell itself. That's why it is functional in nature. So yes, cell is a structure and function unit in your life. अब हम टिश्यू लेवल पे आते हैं. जब आपके मान लो ये आपके 2 सेल्स हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं. जब ये सारी सेल्स कनेक्ट होती हैं आपस में, ठीक है, देन दे विल गोना फॉर्म अ टिश्यू. So in plants and animals, a group of cells. So you can say a group of cells that work together to do a specific job. That is a kind of tissue. Here you can see that skeletal muscles and the cardiac muscles. Cardiac muscles, that means जो आपकी heart muscles होती हैं उनको बोलते हैं cardiac muscles. So these are the example for that. Okay, then you can have another thing that is organ. अब क्या है, जब आपके tissues connected होंगे आपस में, ठीक है, structure which is made up of 2 or more different tissues. Okay, if there are tissues more than 2 or 2, they can combine and which will have a specialized function. Example lungs. ठीक है, lungs का जो रोल है रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहे हैं वो, ठीक है, वो जो ऑर्गन बना है वो डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बना है. ऐसे ही अब आपका ऑर्गन सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब. तो जब ऑर्गन्स मिलेंगे वो आपका ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. ठीक है, और जब ऑर्गन सिस्टम मिलता है, आपस में कनेक्ट करेंगे, then they will gonna form an organism that is a living thing. You can see yourself, you can see a plant, you can see a fish here. Okay, so any organism that you are seeing around, it's just because of that organization. Like, okay, firstly cell, then there is tissue, organ and organ system, and thus in last you can have a perfect organism. तो सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल जिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं तो बेसिकली 2 टाइप्स के आपके होते हैं. फर्स्ट इज इनकम्प्लीट एंड सेकेंड वन इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, IDS एंड CDS यू कैन से. सो इन इनकम्प्लीट, सी डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो इनकम्प्लीट है. जहां पर भी आपको इनकम्प्लीट दिखे, सी वी वेरी वेल नो अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल. लाइक आपका माउथ से शुरू होता है, ठीक है, और आपका एनएस पे खत्म होता है आपका जो एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम है. ठीक है, सो इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, दोनों में से एक प्रेजेंट होगा. दैट मीन्स एक ही ओपनिंग होगी. सो इनकम्प्लीट मतलब दैट मीन्स ओनली वन ओपनिंग. ओके, दैट मे बी माउथ और एनएस यू कैन से, बट दैट मीन्स देयर इज जस्ट ओनली वन ओपनिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल platyhelminths. Okay, or the another very common name for that is flatworms. Netophora is there. Another common name for that is comb jellies and cnidaria. Okay, that is like jellyfish and animals. Second one we are having is incomplete. Complete का मतलब क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया. Incomplete का मतलब कि एक ओपनिंग प्रेजेंट है. एलिमेंट्री कैनाल में माउथ और एनएस होता है. ठीक है, आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है तो इनकम्प्लीट में माउथ और एनएस में से एक है,
कंप्लीट में आपकी 2 ओपनिंग्स होंगी, 2 ओपनिंग्स, दैट मीन्स माउथ भी होगा और एनएस भी प्रेजेंट होगा, लाइक अस, ऑल मैमल्स, लाइक ह्यूमंस, apes and whales, reptiles like snakes. So these are certain examples for that. Okay, like amphibians are there, fishes are there, birds and insects also. Okay, so this is all about the digestive system. Third one is, it's on the basis of the circulatory system. Okay, see circulatory system को अगर आप देखते हैं, so again it can be of 2 types. First is open type of circulatory system, and second one is closed type of circulatory system. Okay, see open नाम से ही क्लियर है, ओपन है, किसी आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ब्लड डायरेक्टली ही अपनी पोजीशन पर जहां उसको जाना है, अपने टारगेट टिश्यू पर पहुंच जाएगा। दैट मीन्स जो ब्लड है दैट इज pumped out of heart, okay, and cells and tissue directly bath in. That means there is no need of I can write there, no need of arteries, veins और capillaries in open circulatory system, ठीक है, डायरेक्टली बात हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इंसेक्ट्स, मोस्टली जो आपके हाइड्रास एंड मॉलस्कस होते हैं, these are certain examples for them. Okay, second one we are having is that is closed circulatory system. See closed, सब कुछ बंद है, that means they need something जो इनकी हेल्प करे ब्लड को अपने टारगेट तक पहुंचाने में। सो ब्लड जो है सर्कुलेट होता है आपकी बॉडी में थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। Okay, so now you must have a question like what is arteries and veins. See अगर आप आर्टरीज की बात करें, ठीक है, let me have this. See अगर आप आर्टरीज की बात कर रहे हैं अगर, ओके, आर्टरीज में क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरीज में क्या है, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके हार्ट से बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है इजीली। दैट इज इन अ काइंड ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन है, वो ब्लड आपकी हार्ट से पूरी बॉडी में पास ऑन हो रहा है। आपके जो वेन्स है उसमें क्या है, जो आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी बॉडी से हार्ट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, वहीं पर ही तो वो चेंज होगा, वहीं पर तो वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आएगा, ठीक है। सो दैट इज वेन्स एंड अनदर एग्जांपल यू कैन से लाइक इन आर्टरीज जो थिकनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है इसकी, ठीक है, क्योंकि भाई इसको बहुत सारा काम करना है ना, इसको पूरी बॉडी में ट्रांसलोकेट करना है ब्लड को, तो उसके लिए आप याद कर सकते हो इसकी थिकनेस जो है, ठीक है, वो ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू द वेन्स, वेन्स की थिन होती है कंपैरेटिवली। ओके, सो फॉर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो एग्जाम्पल है, तो हम में कौन सा सिस्टम है, क्लोज है या ओपन है? ऑब्वियसली ओपन नहीं है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में और लाइक इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड ऑल, मंकी एंड ऑल, ठीक है, उन सब में क्या है, कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट जो लेवल है आप जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज सिमेट्री। कि जब आप किसी चीज को, सिमेट्री इज अ सेंस यू कैन आप समझ सकते हैं, अगर आप किसी चीज को कट करते हो तो उसके इक्वल पोर्शन होते हैं या नहीं होते, ऑन दैट बेसिस यू कैन क्लासिफाई दैट थिंग। सो इन सिमेट्री यू कैन हैव अ लुक। सिमेट्री भी 2 टाइप की है, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। मतलब जब आप कट करोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, अगर वो सिमेट्रिकल मतलब सेम सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल 2 पार्ट्स। Okay, asymmetrical matlab not divisible. You can see there that not divisible into 2 equal halves. ठीक है, like amoeba and the sponges are example for that. So asymmetrical में वो equal divide नहीं होगा, ठीक है। So in symmetrical it is further divided in like radial symmetrical or symmetry or bilateral symmetry. See radial symmetry में क्या है, it can be divided into equal halves by any plane, ठीक है। तो radial symmetry is something like कि अगर आप उसे कट करोगे तो आपको इक्वल हाफ मिलेंगे, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से कट करो, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में डायरेक्शन नॉट डायरेक्शन मैटर
नहीं करती, नॉट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शनल नहीं है, कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती इसमें रेडियल के केस में। लाइक स्टार फिश को अगर आप कट करोगे तो वो इक्वल ही आपका हाफ्स होंगे, आप किसी प्लेन से कट करो वो इक्वल हाफ में ही कटेगी, चाहे आपका हाइड्रा एग्जाम्पल है। बाईलेटरल, सी बाई का मतलब क्या है, दो, मतलब ऐसा है कि इसमें आपको इक्वल हाफ तो मिलेंगे लेकिन ओनली वन प्लेन। सी रेडियल में क्या था, एनी प्लेन, ठीक, सो रेडियल में क्या है बेसिकली, एक जस्ट मिनट, रेडियल इज समथिंग आप किसी भी प्लेन से कट करो, एनी प्लेन से आप कट करोगे आपको इक्वल हाफ आएंगे, ओके, इक्वल हाफ आ रहे हैं आपको। बट बायलेटरल में क्या है, ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन से आपको कट करना और आपको क्या आएंगे, इक्वल हाफ्स आएंगे, जैसे वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अगर मैं आपको बीच में से कट कर देती हूँ तो आपका एक लेफ्ट और हाफ मतलब राइट साइड होगा वो इक्वल ही आएगा, ठीक है। बट इन रेडियल सिमेट्री, लाइक अगर मैं स्टार फिश को किसी भी एंगल से किसी भी प्लेन से कट करूंगी मुझे वो इक्वल हाफ ही अटेन होगा, क्लियर। यू कैन हैव अ एग्जांपल लाइक इन बायलेटरल सिमेट्री, यू कैन सी जब आप इसको ड्रोसोफिला को आपने कट किया सिर्फ एक ही प्लेन से, यू कैन सी देयर इज ओनली वन प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन से कट करने पर ही आपको क्या रहे, वन प्लेन में आपको इक्वल हाफ्स आ रहे हैं, सेम ही हाफ होगा, इमेजिन कर लो अगर आप इसे कट कर रहे हो, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री में क्या है, जब आप इसे कट कर रहे हो, सी बहुत सारे प्लेन है, एनी प्लेन से भी मतलब किसी भी मोर देन वन प्लेन से भी अगर आप कट कर रहे हो, लाइक आप इस डायरेक्शन में कट कर रहे हो, सी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, बहुत सी डायरेक्शन में आपने कट किया, लेकिन जस्ट हैव अ काइंड ऑफ इमेज इन योर माइंड, जब आप इसको इस डायरेक्शन से कट करो तो कैसा इमेज आ रहा है, दैट मीन्स इक्वल हाफ्स आएंगे आपके पास, सो इट्स अ काइंड ऑफ रेडियल सिमेट्री। You can have this in lilies, and in spherical symmetry you can say it's a spherical, like इसमें भी यही है कि किसी भी प्लेन से आप कट कर रहे हो और आपको इक्वल ही आ रहे हैं, in a streptococcus you can say, okay। Now next level on which you can divide or you can classify animal kingdom, that is germ layer। see अगर आप germ को देखते हैं, germ का मतलब है, इसका मतलब है skin, ठीक है, इसका मतलब है skin। तो अब कौन कितनी स्किन का बना है, यहाँ वो डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब दो ही वहां पर लेयर्स है। सी अगर आप जर्म लेयर को देखते हैं ना, बेसिकली हम बोलते हैं कि 3 लेवल ऑफ स्किन होती है आपकी, 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका एपिडर्मिस बोल सकते हैं, डर्मिस स्टैंड्स फॉर दिस, डर्मिस स्टैंड्स फॉर स्किन, ठीक है। एपी मीन्स अबव, ऐसे ही एक होता है आपका एंडो, ठीक है, एंडो मीन्स बिल्कुल अंदर वाली स्किन है। एक होती है मीजो, मीजो मतलब बीच में, मतलब यू कैन से दिस इज योर एपी स्किन और एपिडर्मिस, ओके, दिस द दैट इज जस्ट बिल्कुल जो डाउन है लेयर, दैट इज योर एंडो काइंड ऑफ, और जो इनके बीच में लेयर आएगी इट्स योर मीजो, ठीक है। बेसिकली 3 लेयर्स होती है, यू कैन से। अब किसी ऑर्गेनिज्म में तो ये तीनों प्रेजेंट है, ठीक है, एपी भी है, मीजो भी है और एंडो भी है, जिसमें ये तीनों प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, okay, like you can see here triploblastic। और लेट्स से किसी में जस्ट इमेजिन सिर्फ एपी है, या फिर इसको एक्टो भी बोल सकते हैं, एक्टो भी अबव होता है, ठीक है, और एक लेयर हो रहा है दैट इज एंडो, तो उसको बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक होगी वो आपके, तो जिसके अंदर 2 लेयर्स हैं उसको बोलोगे आप डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट होगी उसको बोलोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। जस्ट हैव अ लुक, जस्ट दिस डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मीन्स एक्टो है और एंडो है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग इज क्लियर। एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, ठीक है। सो सेल्स जो है आपकी अरेंज है, जो आपकी सेल्स है वो आपकी अरेंज है जस्ट 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में, ओके, देयर आर 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। see external is ectoderm, you can have a look there, see this outer one, ठीक है, और you can see external one, external, okay, this is your ectoderm, जो अंदर की तरफ है दैट इज एंडोडर्म, ओके, यू कैन हैव अ लुक वेरी क्लियरली।
And now, a question that may come in your exam, that is, give any example for that. So for example, porifera and the nidaria. Okay, porifera and the nidaria is the example for the diploblastic. Then we are having a triploblastic. See, triploblastic again मैंने अभी आपको बताया, मतलब इसमें एक्टो भी है, एंडो भी है, और बीच वाली कौन सी होती है, मीजो, है ना, तो ये भी प्रेजेंट है. सो एनिमल्स इन विच जो आपके सेल्स हैं अरेंज है 3 जर्मिनल लेयर्स में, मतलब मीजोडम आपका प्रेजेंट है. मीजोडम बिसाइड्स एक्टोडम एंड एंडोडम, वो एक्टो और एंडो तो है बट मीजोडम भी है. सो दैट इज नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक. फॉर एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थ्स, okay, and chordates. I think this diagram is clearly visible to you all. Just have a look there. See this again, that is your ectoderm. Okay, that inner part is, inner one is endoderm, and this layer is, this is your mesoderm. Okay, can have a look there. The next level that we are having is, that is, coelom. Coelom, it's a kind of a body cavity. ठीक है, अब बॉडी कैविटी किसी में प्रेजेंट है या नहीं है, आप उसके बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं. और इफ यू से द फंक्शन फॉर द सिलोम इज, इट्स अ काइंड ऑफ बॉडी प्रोटेक्टर, यू कैन से. मेन इसका पर्पस है प्रोटेक्ट करना, कि बॉडी को प्रोटेक्ट करना, और यू कैन से इट्स अ शॉक एब्जॉर्बर. इट्स अ शॉक एब्जॉर्बर काइंड ऑफ, जो प्रोटेक्ट करता है एकदम से, जो कुछ शॉक लगता है, मैकेनिकल शॉक को प्रिवेंट करता है. ठीक है, सो ऑन दैट बेसिस यू कैन क्लासिफाई दैट. सो प्रेजेंस है या एब्सेंट है उसके बेसिस पे. सो द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, okay, so the body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. Now the thing is, जिसमें सिलोम प्रेजेंट है, ठीक है, उसको तो आप क्या बोल दोगे, उसको आप बोल दोगे सिलोमेट्स. ठीक है, let me just have this. Okay, जिसमें प्रेजेंट है, यू कैन हैव अ लुक देयर. इसका मतलब क्या है कि इसमें सिलोम प्रेजेंट है. ठीक है, अगर सिलोम एब्सेंट है तो आप उसे क्या बोलोगे, असिलोमेट. ठीक, और अगर सिलोम प्रेजेंट तो है बट स्कैटर्ड फॉर्म में है, scattered, or another word you can use is in a form of pouches, या फिर scattered form में है, तो आप उसे बोलते हैं स्यूडो. स्यूडो मतलब होता है झूठा. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ स्यूडो सिलोमेट्स. okay, so just have a look there. Animals possessing animals animals possessing coelom are called coelomate, like annelid, chordates and mollusks. okay, अब कई एनिमल्स वो होते हैं जिसमें स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, स्कैटर्ड एज पाउचेस इन बिटवीन एक्टोडम एंड एंडोडम, उसको बोलते हैं हम स्यूडो सिलोमेट्स. okay, जैसे एस्केलमेंट्स. so in your exam you may get that question, give any example for the pseudo silomates. okay, so the answer for that is esculments. okay, esculments. Or in case of silomate, give any example. So for that I just told you annelid, chordates and mollusks. okay, so animals in which body cavity is absent, जिसमें body cavity है ही नहीं, okay, इसमें है ही नहीं, उसे क्या बोलेंगे, आसिलोमेट्स. an example for that platyhelminths. so just remember, okay, just remember, for pseudo silomates the example is Aschelhelminths. okay, Aschelminths. and for असिलोमेट्स that's platyhelminths. बहुत बार होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, so that's why मैंने अलग से इस पे बताया आपको. just make sure the difference between both, like what is pseudo and what is asilo. pseudo means कैविटी तो है बट इन अ स्कैटर्ड फॉर्म. असिलोमेट्स कैविटी ही नहीं है, दैट इज कंप्लीटली एब्सेंट. ओके, और अगर है तो दैट इज सिलोमेट. जस्ट हैव अ लुक, सी असिलोमेट
As you can see, it's just ectoderm, mesoderm and endoderm is there, but there is no body cavity. Okay, there is no body cavity, although honi chahiye, but there is no body cavity. Then it's coelomates. You can have a look, ये आपकी है, that is your body cavity. ठीक है, that is your body cavity which is not which is present but it's like scattered, टूटी हुई सी ना, मतलब पाउचेस की फॉर्म में अलग अलग से, तो आपकी स्यूडो हो गई। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें अगर आप देख सकते हैं, इसमें डाइजेस्टिव कैविटी है आपकी, और आपका ये जो प्रॉपर है सिलोम, ये आपका स्यूडो सिलोम नहीं है, इट्स कम्प्लीटली सिलोमेट। ठीक है, इस पर मत जाना, ये आपका सिलोमेट है, क्योंकि देखो ये आपकी कैविटी प्रॉपर प्रेजेंट है। Another mode, that you can classify, that you can use to classify animal, that is segmentation. See, segmentation, as you can see by the name, it's just something is divided into segments, you can say. See, it's आपने देखे होंगे ऐसे बहुत से insects, और ये you can have an example like earthworm, आपने देखा होगा, उसकी बॉडी पे ना ऐसे, हिंदी में बोले तो अगर धारियां होती है बहुत सारी, है ना, सेगमेंट्स होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, तो जिनमें भी ये आपको दिखेंगी, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ सेगमेंटेशन। यू कैन हैव अ लुक एज इन दैट पिक्चर। ये क्या है, आपकी सेगमेंट्स है। ठीक है, सेगमेंट। सो इन सम एनिमल्स बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली divided into segments with serial repetition. ठीक है, मतलब continuously you can see there is a repetition of that segment. So with the serial repetition as an earthworm, that is a kind of metameric segmentation, you can say, and that phenomenon is metamerism. So in your exam you may get that question that what is metameric segmentation or what is metamerism. So that is a very clear answer. Okay, if the body is externally or internally divided into segments, then that will be termed as segmentation or metameric segmentation, and that phenomenon will be called as metamerism. Next level is notochord that you can use. See, a notochord, it's a kind of, you can say it's not completely that, but yes, it it is something like that. You must have heard spinal cord. It's not a spinal cord, but yes, it's something connected to that. So it's a mesodermally organ. सी आपके एग्जाम में आता है कि कैसा डिराइव्ड ऑर्गन है, मतलब कहाँ से इसका ओरिजिन है, तो इट्स अ mesodermally derived rod like structure. okay, it's a rod like structure. कौन सी साइड पे बना होता है, डोर्सल साइड पे बना होता है। ओके, सो ये आपका डोर्सल साइड पे बना हुआ एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि mesodermally derived है। ओके, नाउ द थिंग इज, अगर आपने सुना होगा दैट डिफाइन कोडेट्स और डिफाइन नॉन कोड। So if that notochord is present, okay, अगर आपका notochord present है, तब आप उसको बोलोगे chordates। okay, और अगर आपका notochord जो है वो absent है, then that will be termed as non-chordate. As you can see there, if notochord is present, then it will be termed as chordates. If it is absent, then it will be termed as non-chordate. Okay. So for an example, you can say chordates के example है okay, or you can say vertebrates. आपके vertebrates हैं और they are having a backbone, okay, kind of notochord. So all vertebrates are chordates, while the another name for the non-chordates, or you can say for the example for the non-chordates, तो जो आपके invertebrates हैं वो आपके हैं non-chordates. You must have seen lobsters, snails. These are certain examples for, you can say. Remaining lecture will be covered in the next video. So till then, do like and subscribe to my channel. Press bell icon to get new updates. Thank you so much and stay connected.